Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, तो ओवर टू यू मैम। आप पहले ही लेट हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमान कि उन्होंने होम्योपैथी जैसा इतना अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमको दिया है। देन माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय होम्योपैथिक गुरु डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, हमारे आईएचएफ मेंटर्स डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर महाडिक सर, डॉक्टर शिंदे सर, डॉक्टर आनंद सर, and all my HHF mentors also. So, sir, abhi I'll start with the case. So, friends, I'll just read out the case first. So, presenting the case of Mr. A. Now, let me tell you his background first. He is in his early 80s. Now, the exact age is not known because he was born in the lower middle class family in a small village of Karnataka where birth records were not maintained. Now, he lost his parents at a very young age, was brought up by his elder brother and Babi. His Babi used to do a lot of work from him. So, but he would do it happily at that time. And now he has never, there were no regrets. And his daughter also said that he has never spoken ill about them. And he has an elder sister who is now well settled in Chennai. But now he said everybody is busy in their own world. So they hardly meet. Means hardly he has any contacts with his siblings. He studied while staying with his brother, and then he came to Pune. He's from Pune. So to earn his livelihood, and he started working as a delivery boy in a small hotel. So he worked very hard. And now he proudly says that he owns 3 hotels in Pune. And he has 2 sons and 1 daughter. Both the sons are married and well settled. And now they are looking after the hotel very actively. So the person can retire, but no, he still wants to be active. And the sons also, they stay in the same area. Now patient stays with his daughter, who is a nurse by profession, and her husband is working in Dubai. So she and her 10 years old daughter, they stay with him. Now this patient's wife died few years back of sudden cardiac arrest. Now pre-COVID, he used to actively participate in the hotel management. But during COVID, he being an octogenarian was advised by his son to stay indoors. Which he didn't like. So he would argue with them, he would abuse them, he fought with them, and even condemned that in his absence they want to take away all his material possessions. सब उसकी hotel ना उनके नाम कर देनी है. So that is why they are not allowing him to go out. But then the sons were very good. So they were very straightforward and honest. So they took good care of him in spite of his allegations. एक minute. So this is the background, which is very important to understand him. Now his daughter, who is a nurse, she knows she's a friend of one of my patients, and that patient was better with homeopathic medicine. So he referred her to, and so she called me up in January 2020. अभी तभी है ना इनको एक रिकरेंट चेस्ट पेन होता था, तो उन्होंने बोला कि सो दे कंसल्टेड द कार्डियोलॉजिस्ट और सब इन्वेस्टिगेशंस हुए और उसमें पता चला कि ही नीड्स एन अर्जेंट बाईपास. लेकिन when the cardiologist examined him, तो this patient had a lot of extensive lichen planus, almost covering each and every part of the body. और जहाँ से वो जो वेन लेनी है ना बाईपास के लिए लेग में, वहां पे बहुत ही था. एंड द पेशेंट यूज्ड टू स्क्रैच लाइक एनीथिंग, ब्लीडिंग होता था वहां से.
तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आप पहले ये स्किन का इश्यू ठीक कर दो, फिर हम लोग बाईपास उनको ले लेंगे। और 200 एलोपैथिक दवाइयाँ चालू किया था, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। सो देन दे कंसल्टेड मी। सो मैंने उनका केस लिया, तो तभी फिर देन ही वाज बेटर विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन तभी ही फिर ये अपना मार्च में लॉकडाउन चालू हो गया, तो द होल थिंग बाईपास एंड एवरीथिंग वाज पुट अ हॉल्ट। लेकिन फिर इन द एंजाइना आल्सो ही वाज बेटर, एंड एक्चुअली आफ्टर दैट ही वाज एट होम ओनली। तो उनके लिए कुछ एक्सर्शन भी नहीं था। सो नाउ लेट अस सी कि वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस क्या था। So वो patient, now the daughter was, the phone was taken on the video call. So this patient is around 5 feet tall, very dark and slim man. And while talking, he was quite vivacious, very much animated. And he used to lean forward while talking, and he moved his eyes a lot. ऐसे ना बोलते हैं ना, आंख नचा के ऐसे 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 करके वो ना वो बातें कर रहा था. And he said, and he was very sweet to talk to. And while talking to me, he appreciated his daughter a lot for being there for him, for looking after him, for serving him. And he said, I want to give my one hotel to her. Like जैसे 3 होटल है ना, तो दोनों बेटों का एक है ना, ये बेटी को भी मुझे देना है. So and he very proudly he said कि मेरा business इतना flourishing है ना कि मैंने ये time income tax return में ना I have paid 2 crores to the department. So then and he was very happy in all this narration. And he wanted to go for the surgery so that he will be fit again to look after his business. Daughter described him as a workaholic person. He was very fond of good clothes, good and new shoes, perfume. But however, daughter said that there were many quarrels at home between her parents, as this patient used to never give enough money to his wife for household expenses. घर चलाने के लिए जब भी वो पैसे मांगती थी, तभी घर में झगड़ा होता ही था. तो एज अ रिजल्ट वो नर्स ने क्या बोला कि उसको ऐसा लगा कि मैं बड़ी होके ना बहुत ही पैसा कमाऊंगी, ताकि ना घर में पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई शी चोज दिस एज अ करियर. तो दैट इज व्हाई शी वांटेड टू बी अ करियर वुमन. फिर ऐसा हुआ कि बट हाँ, वो घर पे पैसे नहीं देते थे, लेकिन ही वुड इन्वेस्ट मनी फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ही वुड स्पेंड ऑन हिमसेल्फ. ही यूज्ड टू मींस नए कपड़े लेने का, परफ्यूम लेने के वगैरह. और हाँ, बच्चों के लिए कुछ खरीदी करनी है तो वो नर्स ने ना उसने ऐसा बोला कि मैं अपने लिए कुछ नहीं लेती थी. मतलब ही वॉज नॉट अवेयर कि चिल्ड्रन को भी कुछ देना चाहिए ऐसा. एंड विथ हिज वाइफ द रिलेशंस वर वेरी बैड. ही यूज्ड टू वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज हर इन फ्रंट ऑफ द किड्स. नाउ इन द बिजनेस टू ही टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन. मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं तो वो खुद ही लेते हैं, भले अब उनके बेटे दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट. Or he craved for fried food and demanded it even during lockdown. And his daughter would give him tomato soup. अच्छा हाँ, ये तो लॉकडाउन के बाद की कहानी है. तो दिस इज इट, लाइक ये पहले का केस था इतना. तो मैंने एक दवाई दिया रूब्रिक्स लेके, एंड दैट वर्क लाइक अ मैजिक, एंड द स्किन बिकेम टोटली क्लियर. पूरा बॉडी में से चला गया. और लेकिन यहाँ पे ना एक बात ना, वो डॉक्टर ने बोला था ना, वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा था. मैंने ये राइटअप में नहीं लिखा है कि that he had lesions on his scrotum also, and the doctor would apply cream on that part. तो मुझे ना जरा सरप्राइज हुआ था कि this is very odd, like he has his hands, वो जगह पे तो वो खुद भी लगा सकते हैं ना, तो how is it. लेकिन फिर anyway this medicine helped him. मैंने वो भी कंसिडर किया था. तो ये हो गया. अभी इचिंग सबसाइडेड, एंड देन अगेन फिर वापस, हाँ, फिर लॉकडाउन हुआ तो सर्जरी वाज अगेन पोस्टपोन्ड. And he was better even in his anginal pains. And he being so active didn't like to, he was so active, so he didn't like to remain indoors. और उनका झगड़ा तो चालू ही था. वो उसकी डॉटर से भी फाइट करते थे कि यू लेट मी गो आउट एटलीस्ट टू द बैंक. बट देन माई बिजनेस इज सफरिंग, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन था, हॉटेल्स भी बंद थी, तो क्या बिजनेस था. तो और हाँ, ये ना घड़ी घड़ी झगड़े होते थे डॉटर और फादर के बीच में कि मिडिल ऑफ द नाइट ही वुड गेट अप एंड स्क्रीम कि मुझे बाहर जाना है, तुम लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते हो. ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स ही वुड शाउट. लेकिन फिर है ना, वो उनके दोनों बेटों ने डॉटर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि
आप भले नर्स हो, आप भी आपका काम छोड़ दो और you look after father and your daughter because there's nobody to look after them. So daughter had to leave her job and she was at home. फिर क्या हुआ, few months later I, हाँ, और ये जब भी जो एंगर एपिसोड्स थे ना उसके लिए आई यूज्ड टू गिव द सेम मेडिसिन और उसमें उसको ठीक हो गया था, वो एंगर एपिसोड्स कम हो जाते थे लेकिन थोड़े टाइम के बाद वापस होते थे. अभी few months later I received another call from his daughter and this time now she said कि there is a new problem and अभी है ना उनको है कि he gets recurrent fever and there is increased frequency of urination especially at night. तो डॉटर क्या करती थी, उनको एक टम्बलर देती थी कि एट नाइट यू डोंट मूव अराउंड, आप ये टम्बलर में यूरिन पास कर दो एंड इन द मॉर्निंग आई विल थ्रो इट आउट. तो इन द मॉर्निंग व्हेन शी वुड नोटिस नो, तो इट वाज यूरिन वाज वेरी टर्बिड. तो उसको यूरिन रूटीन कराया एंड देयर वर इडिमा फीट एंड इट रिवील्ड 150 per cells and then the antibiotics were given. लेकिन फिर भी उनका यूरिन मतलब फीवर रिकरेंट आता था तो रिकरेंट एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे. तो यूरोलॉजिस्ट को बताया तो बोला कि इट इज यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एंड सो डायलिटेशन वाज आल्सो डन ट्वाइस. अभी ना ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने बहुत बार उनके केस लिया लेकिन एंड आई चेंज द मेडिसिन couple of times or even more than that, but there was no change. So he was continually on antibiotics and hardly one course of antibiotic is over and in a week there is a new episode of fever and again new antibiotics were given. So now they thought कि अभी चलो वापस होम्योपैथी ट्राई करते हैं इसके लिए. So they expected a lot from homeopathy and I used to change the medicine but nothing was working. तो भी मैंने बोला कि भाई अभी क्या चल रहा है, आप बोलो कुछ मुझे. तो हाँ, और तभी ऐसा था कि डॉक्टर ने बोला हाँ पोस्ट वाइड यूरिन वाज मोर, सोनोग्राफी करवाया ना तो इट वाज अराउंड 500 ml. तो डॉक्टर यूज्ड टू आल्सो वंडर कि पापा पानी तो इतना कम पीते हैं तो भी ही इज पासिंग सो मच ऑफ यूरिन. तो पहले ना वो डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है ना, मतलब द पेशेंट देयर इज प्रोफ्यूज यूरिन, तो लेकिन उसका भी टेस्ट करवाया तो वो भी सब नॉर्मल आया है, दोस हार्मोन्स टेस्ट. फिर उसके बाद में है ना और हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि यूरोलॉजिस्ट से यू कैथेटराइज्ड हिम तो परमानेंटली लाइक. तो वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसे तो वापस इन्फेक्शन आएगा ना बिकॉज ऑफ द कैथेटराइजेशन. तो वो भी वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, वो शी डिडंट गो फॉर इट. तो फिर बोला कि फिर आपको मैन्युअली यू डू इट. तो बोला एटलीस्ट यू डू इट 3 times a day. तो सोचा कि कोई बंदे को रखते हैं लेकिन तभी वहाँ ओमिक्रॉन का एपिसोड आया. तो डॉक्टर सेड कि नहीं अभी कुछ हो जाएगा तो वापस नया एपिसोड, मतलब इनको लगा तो कोविड. तो फिर है ना डॉक्टर सेड कि मैं तो नर्स हूँ तो मैं ही, शी वुड पास द कैथेटर एंड शी वुड रिमूव द यूरिन. तो हमेशा 500 ml जितना आता था पोस्ट कोविड. So once his daughter was very much embarrassed while saying all these things, but she called me and he said, "My father is very delirious and he is saying constantly कि you were तुम तो आज रात को आने वाली थी ना, तो तुम इतनी लेट क्यों हो?" और उसका हाथ पकड़ा और बोला, "अरे तूने आज मेरे को यूरिन क्यों नहीं निकाला?" एंड रात को बीच में ही बोला कि आज तूने मेरे को छुआ क्यों नहीं. तो द डॉटर सेड, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे ऐसा क्यों बातें कर रहे हो. तो इसे कि अरे मेरी शरीर की गर्मी है ना तो वो तो निकलनी चाहिए. तो मुझे भी तो निकालनी है ना, तो मैं कैसे निकालूं फिर, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा. तो द डॉटर वाज वेरी हेजिटेंट टू टॉक ऑल दीज थिंग्स. लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं भाई तू बोल, क्योंकि अगर मुझे बराबर से उनका क्या स्टेट है अभी वो मुझे पता चलेगा तो मैं उनको अच्छी दवाई दे सकूंगी. तो फिर उसने बोला कि देखो ऐसा है कि पापा ना ऐसा भी बोलते हैं कि आप बेटी को कि तू मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रही है, क्योंकि द डॉटर वुड गेट एंग्री, वो जब भी ऐसा बोलते थे तभी. तो वो बोले कि मैं और तू अकेले ही तो रहते हैं, तो मैंने क्या क्या कभी तेरे को छुआ है क्या. और बोला कि तू तो इतना बाहर जाती है, कितने कितने लोगों के साथ क्या क्या करते आती होगी, लेकिन कभी मैंने तेरे को कुछ बोला क्या. So the daughter was also quite surprised because she is a very decent, refined girl ऐसे है. तो only thing ये बंदा quite lucky है कि उसके तीनों बच्चे और वाइफ भी बहुत ही caring थे towards him. So डॉटर सेड कि ये जैसे मेरे पे ऐसा आक्षेप डालते हैं ना कि तुम बाहर जाके यू हैव अफेयर्स, वैसे ही वो मेरी माँ के ऊपर भी करते थे कि my mother was very beautiful, fair, tall, and she looked much better than this patient. This patient is tall and no short and dark and slim. तो ऐसे बोला कि एक बार है ना वो लोग कोई यात्रा पे गए थे, पिलग्रिमेज पे.
तो देयर वाज अ क्राउड देयर। तो वहां पे ना ये बंदे ने उसकी बच्चों के सामने उनकी वाइफ को बोला कि अरे तू यू कवर योर ब्रेस्ट, दुपट्टा साफ अच्छे से डाल, देख वो लड़का वो बंदा है ना तेरे ब्रेस्ट के सामने देख रहा है। सो मदर वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड ही यूज्ड द वर्ड लुक एट योर ब्रेस्ट। उसने सिर्फ ऐसा बोलना चाहिए था कि यू कवर योरसेल्फ। तो मदर आल्सो मदर न्यू ऑल दिस थिंग्स प्रोबेबली अबाउट हिम। तो इसे उसने उसकी बेटी को बोला कि देख मीन्स व्हेन दे यूज्ड टू व्हेन शी वाज अलाइव, बोला कि जब भी मतलब तू मेरे आजू बाजू पे रहना, क्योंकि तेरे पापा जब भी घर पे है ना तभी, क्योंकि है ना एक बार ऐसा हुआ था व्हेन दैट डॉटर वाज नॉट अराउंड। तो वो बंदे ने ही डिमांडेड सेक्स फ्रॉम हर एंड एट दिस एज, मतलब ही मस्ट बी इन हिज लेट 70s और मे बी अर्ली 80s, पता नहीं, मम्मा तो अभी गुजर गई शायद। तो फोर्सफुली उसने सेक्स किया अपनी बीवी के साथ। तो मदर वाज वेरी मच एम्बेरेस्ड कि ये क्या एज है, मतलब शी वाज नॉट रेडी फॉर इट। एंड ऑल्सो शी एडेड दैट मम्मी है ना हमेशा हम बच्चों को ना बोलती थी कि हाँ हमारे बच्चों का एजुकेशन भी है ना, पापा कभी भी स्कूल में नहीं आए या कभी भी कोई कॉलेज में नहीं आए या कभी एडमिशन लेना है तो ही हैज नेवर बॉदर्ड। और हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स है तो घर में बैठ के सब इकट्ठा होके डिस्कस करते हैं ना, तो हमारे घर में ऐसा डिस्कशन ही नहीं होता था। और मम्मी को ना उसके पापा हस्बैंड का स्वभाव पता था, तो डॉटर उसने अपने बच्चों को बोल के रखा था, देखो पापा का स्वभाव आप सबको पता है ना, तो यू बेटर फाइंड राइट मैच फॉर योर सेल्फ ओनली। आप ही अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ लो एंड यू गेट मैरिड एंड यू सेटल। और फिर उन्होंने बेटे को भी बोला था कि भैया सी वी आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो आप अपनी जगह ले लो और शादी के बाद ना सीधा वहीं पे रहने को जाओ। तो बोथ द सन स्टार्टेड स्टेइंग सेपरेटली एंड द डॉटर वाज आल्सो इन दुबई फॉर सम टाइम। और फिर हाँ डॉटर को भी उसकी मम्मी ने बोल के रखा था कि देख तू है ना संभालना, तेरे पापा ऐसे है ना अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे कभी। आई मीन सो शेमफुल, बट द डॉटर ना ये सब बोलने से बहुत ही हेजिटेंट थी। और ये सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे है ना फर्स्ट एपिसोड पहले टाइम नहीं मिली है मुझे, आई हैड टू डिग अप द होल थिंग और ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। तो ओके, हाँ सो डॉटर ने भी ऐसा किया था ना कि उसकी डॉटर को डे केयर में रखा था और ये जल्दी निकल जाती थी और रात को लेट आती थी। तो एक बार ना उसने घर में एक साड़ी देखी, तो बोला साड़ी तो घर में कोई नहीं पहनता है। तो पापा को पूछा ये किसकी है, तो पापा ने बोला ये ऊपर के फ्लैट से ना गिर गई है तो बालकनी से मैंने ले लिया, ही लाइट। तो बोला ठीक है मैं दे के आती हूँ, डॉटर ने बोला। तो नहीं नहीं तू मत दे, मैं जाके दे के आऊंगा। फिर डॉटर को कुछ उसने तपास किया तो वो वॉचमैन ने बोला कि आप जब भी नहीं होते हो ना, तो देयर इज वन लेडी हु कम्स टू हु विजिट्स योर फादर। तो दैट वाज अ धोबन वॉशर वुमन, आती होगी वो एरिया में। तो शी कम्स। तो डॉटर ने बोला कि होगा मेरे पापा का अफेयर सब होंगे। So from all these, I selected rubrics, new remedy, and then it helped him. So no infection in last 1 year. Urine is very clear. Edema feet has totally disappeared, and post-void urine is also reduced from 250 to 3. It was 500 ml. अभी 250 to 350 ml है। फिर भी अभी ज्यादा है, लेकिन ही स्टिल ऑन ट्रीटमेंट। और हाँ साल में एक भी बार नहीं ना उसको वो डायलिटेशन नहीं करना पड़ता है, यूरेथ्रल डायलिटेशन। इट्स कमिंग आउट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ही हैज बिकम वेरी सोबर, मतलब अभी है ना घर में झगड़े नहीं होते मुझे बाहर जाना है। एंड वो ये भी नहीं होता कि अपनी डॉटर के साथ ना वो ऐसी जो बातें करते थे ना कि वे वो भी अभी बातें बंद हो। सो फ्रेंड्स दिस इज द केस। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे एनालिसिस किया है। कोई बोलना चाहेगा तो देन विल गो अहेड। जी हेलो। प्लीज ऐड कीजिए सभी। जी बताइए। चैट में तो सबने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स लिखे हैं। मेनी पीपल हैव कम टू द रेमेडी आल्सो। कम ऑन। Dr. Kaushal Shah, I think he's the first person.
हेलो। हेलो मैम। ओ हेलो श्वेता मैम, हाँ आपने भी अच्छा लिखा है, हाँ बोलिए मैम। मैम, मुझे रूब्रिक तो अभी वैसे याद नहीं है, बट वैसे पर्सनालिटी टाइप ये ऐसा लगा ना कि ये अपने में ही ज्यादा है। इसको मतलब हम्म। परिवार की फिक्र नहीं थी, सेम लेस बंदा था, मतलब इसका कैरेक्टर भी वैसे ठीक नहीं था। ऊपर से वो वाइफ जो इतनी अच्छी है उसके ऊपर वो शक करता था। और इसको बिजनेस के लिए मतलब था कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बिजनेस देखना है, अकाउंट में मतलब पासबुक में एंट्री करवानी है। और बच्चों को भी मतलब कोई डिसीजन नहीं लेने देना। तो और जब ये बीमार था तब वो इतना बेटी कर रही है, फिर भी उसको बोलता था कि तुम मुझे ये नहीं करके दे रहे, वो नहीं करके दे रहे। तो जो उसको मतलब इतना केयर कर रहे हैं उनको ही वो कर रहा था। और जब बात कर रहा था तो बहुत लाइवली और अच्छे से बात कर रहा था। और जब उसने आपसे फोन पे बात की तो उसने बोला कि मैंने 2 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया है। मतलब वो बहुत मतलब हार्डवर्किंग रहा होगा, इसने अचीव किया है। क्योंकि वेटर से लेके होटल्स बनाना दैट इज अचीवमेंट। पर हम्म। फैमिली के लिए वो कुछ भी नहीं है। बाहर वालों के लिए उसने मतलब मेहनत की, बाहर से पैसा बनाया, मतलब पैसे पे इसका फोकस ज्यादा है। तो ये पूरे केस में अगर देखें ना तो फर्स्ट पार्ट में मुझे आर्सेनिक का फील आया था मैम। और सेकंड पार्ट जो था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ली है, और वो इस तरह से मतलब अपनी बेटी की तरफ इस तरह से बोलना, और बाहर कोई औरत आती थी तो ये सारी चीजें जो कैरेक्टर उसका जो था कि कहीं किसी से टिकना नहीं। तो ये मुझे फ्लोरिक एसिड सेकंड पार्ट लगा था, या टीडी वेरी फिर गुड। वैराट कह सकते हैं मैम। या वेरी गुड वेरी ओके मैम। गुड। और कोई मैम? हेलो। आपने बहुत नटशेल में अच्छा उसके बारे में बता दिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ना वो आर्सेनिक नहीं दिया था मैंने। फिर वैराट मैम। पार्डन सर। वैराट मैम। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। पार्ट। नहीं नहीं हाँ। नहीं, फर्स्ट पार्ट वेरेट भी नहीं था। ओके ओके वेरेट में मैम। तो वेरेट में ना, नहीं फर्स्ट पार्ट ना एक्चुअली मैंने इसको वेरेट भी बीच में दिया है बहुत बार, लेकिन काम नहीं किया है। बट फर्स्ट पार्ट ना मैंने मैं बताती हूँ आपको। और कोई बोलेगा कुछ फर्स्ट पार्ट के लिए? हेलो मैम। या हाँ, यस मैम। मैं डॉक्टर पूजा बात कर रही हूँ। हाँ। फर्स्ट पार्ट में मुझे नक्स का लगा है। अच्छा। वेरी मैंने नाइस। इंडस्ट्रियस लिया है, अब्यूज हिज हस्बैंड, इंसल्टिंग वाइफ एंड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, हम्म। हम्म। टॉकिंग बिजनेस ऑफ हम्म। बोस्टर और अवेयर स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ, डिक्टेटोरियल। तो नक्स का आ रहा है। या वेरी गुड मैम, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर अभी मैं थैंक यू। बोल दूं, मतलब वी आर गेटिंग लेट, तो फिर आई रिवील द रेमेडी या सर। मैम। हाँ। हाँ यस तो मैम। या तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर पूजा, डॉक्टर श्वेता एंड बहुत सारे डॉक्टर्स ने, यू ऑल आर राइट। दिस पेशेंट इज फ्लोरिक एसिड, द सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट है ना नक्सोमिका है। लेकिन मुझे लगता है कि नक्सोमिका दो हेल्प हिम इन ये लाइकन प्लेनस, लेकिन कहीं पे ना मे बी ही वाज फ्लोरिक एसिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट नक्सोमिका वो काम शायद वो फेजिक रेमेडी होगी, तो उसने वो या इंडिकेटेड रेमेडी वो स्टेट के लिए, तो वो काम आ गया। तो मैंने यही सब रूब्रिक्स लिए थे। बोस्टर लिया था, डिल्यूजन वेल्थ लिया था, एब्यूजिव हस्बैंड इंसल्टिंग वाइफ बिफोर चिल्ड्रन, और शेमलेस भी लिया था कि वो बेटी बताती थी ना, शी यूज्ड टू अप्लाई इट and then he was quite okay with it. Maybe this is the floric acid part of it, but anyways nux omega helped him at that time. तो कभी कभी ना अपने को लगता है कि कभी ऐसा भी होता है वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सिमिलम, लेकिन कभी ऐसी पार्शियली एक्टिंग रेमेडी भी है ना, अपने को काम आ जानी चाहिए। तो आई फील कि कोई भी केस में ना इफ यू आर नॉट एबल टू रीच द कोर ऑफ द पेशेंट, तो इट्स ओके जो भी अपने को पार्शियली सिमिलम मिला, तो एटलीस्ट वो टाइम पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर शायद ये लेयर्स में भी ट्रीटमेंट हुआ है, मे बी ये भी एक थियरी है अपना। तो वो हुआ है। और अभी सेकंड पार्ट आप सबने सही बोला कि दिस इज फ्लोरिक एसिड। और जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे, वो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था मोरल फीलिंग वांट ऑफ, कि कैसे कोई बंदा अपनी
बेटी के लिए ऐसा सब कुछ बोल सकता है। और सेकंड लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी। तो बिकॉज बिफोर कोविड ही वाज वेरी इंडिपेंडेंट गाय एंड ही यूज्ड टू रोम आउट, डॉटर भी घर पे नहीं रहती थी, तो मे बी he had this frequent sexual intercourse और ऐसा कुछ रहा होगा। और अभी तो now he is under the constant supervision of the daughter, तो वो सब कुछ बंद हो गया। तो that is ailments from celibacy, moral feeling want का। और एक रुब्रिक है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। सर आप पीपीटी प्रेजेंट करेंगे तो आई एम नॉट एबल टू डू इट। प्रवीण सर, जी मैम। सर आप पीपीटी डालेंगे, मेरा यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मैं एक सेकंड दीजिए। वो देख रहे क्या, lascivious looking at women on the street? हाँ लेशिवियस, हाँ हाँ सर। सर और है ना, एक्चुअली ये है ना मेल जेनाइटेलिया में इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन ओल्ड पीपल। तो इसमें ना सिर्फ 7 ड्रग्स ही है। तो ये 3 रूब्रिक्स डाले थे ना, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबसी, मोरल फीलिंग वांट ऑफ एंड दिस सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन ओल्ड पीपल। तो इसमें ना फ्लोरिक एसिड आता है। तो दिस वाज माय फर्स्ट ये। अभी रिट्रो में देखते हैं ना, तो जैसे जायसवाल सर ने बोला ना, तो ये वो रूब्रिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वन ऑफ द कोर रूब्रिक्स है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे फ्लोरिक एसिड पे? तो अच्छा है। मैंने तो इसमें 3 रूब्रिक लगे लिया था मैंने। एक्चुअली मैं फर्स्ट पार्ट नहीं सुना, वहां से सुना जहां से वो ऑइंटमेंट वगैरह लगाती है ना उसकी बेटी, हाँ तो बोलता है, वहां से मैंने सुना था। तो और उसके बाद जो उसकी वाइफ को बोलता है कि बेस्ट हीरो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये खुद देखता है, इसीलिए इसको ऐसा फील होता है। तो रेट्रो में देखें तो इसकी जो एक रूब्रिक बनती है, लैसिवियस लुकिंग एट वुमेन ऑन द स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट से भी ज्यादा है, ये अपने ही घर में अपनी बेटी पर भी नजर डालता है। एंड अलॉन्ग विद डिक्टेटोरियल एंड एमोरस, ये 3 रूब्रिक लेकर मेरे की फ्लोरिक एसिड आ रही थी, वहां से सुना था मैंने। ओके। उसके हिसाब से मुझे ये लगा था। तो मुझे लगता है बैकग्राउंड में डायरेक्ट ना भी हो तो बैकग्राउंड में ये रूब्रिक जरूर है, लैसिवियस लुकिंग एट, ये रूब्रिक जरूर आनी चाहिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। ओके। हाँ देखो, ये फ्लोरिक एसिड है ना, देखा जाए ना तो इट इज इन प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ओके। और दूसरा है मटीरियलिस्टिक पर्सन। तो ये 2 रूब्रिक्स है उसके। और सुपरफिशियल इन हिज कॉन्टेक्ट, ये कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है। तो ये मतलब जो फ्लोरिक एसिड बच्चा बंदा होता है वो पहले से ही काफी प्रिकॉशियस होता है। और इन लोगों को क्या बोलेंगे, जी मैम, प्रेकोसिटी में भी है फ्लोरिक एसिड और प्रेकोसिटी सेक्सुअल में भी है, दोनों ही रूब्रिक्स में है। आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है ना मैम? उनका कनेक्शन शायद टूट गया सर। ओके सर। जी। यस सर। ओके सर, एक मिनट। हाँ सर, एक्चुअली ना आई एम नॉट एबल टू सी, अगर मैं वीडियो से कर रही हूँ ना लैपटॉप से और मोबाइल से, दोनों से नहीं हो रहा है सर। हाँ, वो नहीं होगा ना मैम, दोनों से नहीं होगा। आपका अलग अलग टेलीग्राम अकाउंट चाहिए तभी हो पाएगा। अच्छा ओके सर, एक सेम मिनट। अकाउंट से नहीं होगा, सेम अकाउंट से आप एक ही जगह ज्वाइन कर पाएंगे। ओके ठीक है सर। हाँ तो ये जो फ्लोरिक एसिड है, ये मैंने थोड़े थोड़े बुक्स में से रखा है, बुक्स में से लिया है। तो डॉक्टर विठुलकास देखते हैं क्या बोलते हैं कि ही इज अ वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन and he is a man of the world. He enjoys life to its full extent and feels and he is not bothered about the spiritual development.
अवेयरनेस, कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अवेयरनेस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा कुछ है ही नहीं. मतलब दिस पर्सन इज 80 प्लस, लेकिन ये सब उसके दिमाग में अभी तक गया ही नहीं है कि अभी ये उम्र में क्या करने का. And then very crude energy means makes itself known early in life by a driving force for sexual intercourse. They often begin at the age of 13 to 14 years and has to have sex every day. And it is not easy to discern. May come with falling of hair or sleeplessness or anxiety beyond their control. First few prescriptions, they do not do anything. Then as you know them, a better picture emerges. So next slide. So very early intercourse, then early but short marriage, because there is frequent change of relationship, but there is no satisfaction. Beautiful girlfriends, but superficial relationship. इसीलिए ये rubric में भी है superficial contacts. मतलब they just want the sex is for them is only skin to skin touch, but there is no internal emotional connection. They do not care about inner relationship. Insensitive and aggressive, not refined. They do not understand sensitivity. They develop a feeling of superiority, which is seen by actions to put down others. For example, we'll get all girlfriends to wear blue shirts. Kind on another level, like to help others materially. They don't understand any other kind of help. Noon is the best time for sex, 1 to 2 p.m. No real contact with others. They promote their own feeling of enjoyment. So next slide. They cannot relate if they don't please him. But very sensitive to suffering of others. They will go extreme to save the life of a child with cancer. This is because they're very deep down, there is an anxiety about their health, tremendous fear of cancer, as if exercise cancer by means they are cutting down the risk of cancer by helping others. This tremendous fear of suffering. They make friends with doctors. They want to enjoy life and they die without suffering. They want to die without suffering. Second stage is when they are exhausted. The energy is they've exhausted their energy. The memory is full of sexual achievements. They can have an orgasm without an erection by imagining a young girl. Great fear of suffering. Have seen a lot of suffering. Very brusque in an interview. Initially in a hurry. May prescribe Nux vomica. देखो ये केस में शायद ऐसा ही हुआ रहेगा. I prescribe Nux vomica initially. But anxiety does not reveal until later. So next slide. When they are suffering, they tolerate it quite well. But fear, it will develop into something. That is fear of suffering in the future. Ameliorated by cold applications, cold water, cold shower. Aggravation by warm applications and warm drinks. So they are quite demanding, total glamour. They will push anything and any more aside in the all absorbing desire to shine and glitter. They love to be the big macho guy for everybody to look up to. They want to draw attention with their big car, loads of dosh, and a high position in the glamour world. They are very ambitious. They want to climb up high and earn lots of money. So next slide. Excuse me. At the same time, they are very arrogant and they can be very arrogant once they have succeeded in getting where they want to achieve, the position they want. They'll make sure that others know about it. They radiate success and they want everyone to notice it. But they don't like to put too much effort in reaching the goals. They like getting the money, but it would be nice if someone just give it to them. And on the other hand, they can't stand the arrogance of other people. ये फ्लोरिक एसिड ना egotism rubric में भी है. They hate hierarchies and the thought that other people might have more influence or might have some power over them, it fails them with horror. So next slide, please. So there is total desire for possession. So they like money and positions, a large estate, a fast car, perhaps Rolls Royce 1 or 2, trendy clothes and elegant suits, and pick of the most beautiful women. This is what they aspire. Anything that will show the world that they have made it.
On the way to getting this, they might be quite mean and miserly. They are good at saving. Free gifts are very welcome. Or they might wheel and deal and buy up things cheap to sell them again at a vast profit. They prefer to buy things in bulk and sell them in bulk, a minimum of effort to secure bulky profits. They like to the stock market and short-term money lending activities. So next slide. Serious gambling. Gambling is a favorite pastime. Not only do they gamble in casinos and lotteries, their whole life is one big gamble. It has to be because they like to get things the easy way. So in order to get all this money and these women and this lucrative position fast, they have to take risks and they gamble in stocks and shares and relationships in their careers. They might even become addicted to gambling. Totally superficial. Their life, so ये rubric भी है ना अपने को है कि superficial in all the relations. Their life is one of little depth. All they are interested in is the outer facade, the fast cars, the glitter, the clothes, the women. Their thinking becomes more and more superficial. They might even scoff at the idea of a deeper meaning of life. Fast and hard. They are the fast and hard and fast boys. They also talk just like a machine gun. Their clothes are trendy and well made. They are easygoing and smooth in their content with others, but in their contact with others. But they can just as early drop you again when they have had enough. Others may initially find themselves flattered by their smooth talk, but subsequently find that they are talking to a brick wall as far as emotions are connected. They can be very hard and vindictive after being hurt. ये rubric है ना, revenge, hatred and revenge में भी है. They would not forget any wrong that has been done to them, and they will fight it out with that person regardless of their status or position. They are not afraid of doing battle with anyone. So next slide, please. Totally ruthless. In extreme situations, they can become totally ruthless. They are not interested anymore in what others may think of them. They don't care about norms and values. They will cheat and lie if it suits their purpose. They would not hide the fact either, except when it is in their own interest. Any trick to cheat others of their money or their property is allowed because there is no moral values, na? As long as it works. So it's not surprising that they often end up as criminals. A real narcissistic. As a true narcissist, they like to forge ahead without any consideration of others. They have to win by hook or by crook. Sooner or later, other people catch on to what is happening and start to avoid them. So they end up lonely and isolated. So next slide. A real psychopath. ये last stages are in लोगों के. From the above can be seen that they have psychopathic tendencies. Terms such as ruthless criminal and unscrupulous sex maniac and absolute psychopath could be applied to them. One of the causes of this extreme sort of behavior might be when they feel they have lost all dignity after. For example, an experience of incest, total desire for sex. They are very sexually minded. They like to talk about it a lot, usually in a derogatory way, as if the partner is merely a plaything. They fall for beautiful men or women, beautiful also in the sense of the glamour of the latest fashion. They go for fashion models, long leg blondes, or rich and aloof machos. So next slide. Hello. So next slide, please. जी मैम जी. Exhausted life energy. Later on, they may reach a state of exhaustion. Their extravagant lifestyle, the abundant nightlife, all that sex and alcohol can exhaust them to the point of burnout, even at a relatively young age. So expressions are fear, value, unknown, life, strangers, fear of future, traveling, flying, open spaces, streets, failure, disease, operations, cancer, death, poverty, impotency, and murder. And irritability, angry, furious, aggravation, loss of money. Achha.
Then mood, cheerful, excited, active, hurried, restless, impulsive, lively, timid, unsure, indecisive, ameliorated by support, listless, bored, meaningless, gloomy, superficial. Mentally, they are quick, associating, confused, slow, problems orienting, problems concentrating, forgetful, dementia, mania. Contact are easy, superficial, talking, fast, and stacco. Religious is tacto, huh? Sorry, I don't know this pronunciation. Religious, magic, associating, obsessive. Art is ameliorated by rave music. Causes neglect, abuse, violent, incest, parents absent. ये पेशेंट में भी शायद यही होगा ना कि देयर वर नो पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड. Loss of parents or protectors. They are weak, or parents are absent, or they are weak, or they are addicted. Okay. So next, please. Sir. Mind, impulsive to walk fast, necessity to be always on the move. ये एक rubric है, हाँ, complete में they always want to walk. और ये रडार में भी है. मतलब इसका है ना, डॉक्टर महेश चंद्रा सर जी का मैंने एक पढ़ा था ना फ्लोरिक एसिड के बारे में. तो ऐसा लिखा था कि वॉट एवर दे डू ना, मतलब मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि वॉट एवर दे डू दे वांट टू कीप ऑन डूइंग इट. दे आर वॉकिंग, सो especially related to sex and whatever the possession they have, the sex, जहाँ से भी उनको अभी we take it on a broader sense कि सेक्सुअल प्लेजर, मतलब जहां से भी उनको वो जो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना, मे बी इन द मटीरियल पोजेशन, so they want to walk and walk, they want to do it, they want to continuously do it and do it, like aversion to his own family, to those loved ones, become interested in converses, inability to realize the responsibility. It goes with lycopodium in this. ये है ना, रडार में दो रुब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू, एंड दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक. तो फ्लोरिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू में नहीं है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक. मतलब उनको वो एबिलिटी ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमें किसी की लाइफ के साथ इतना जुड़ना पड़ता है ना, कि उसकी लाइफ को अपना समझ के वो लेना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे तो पूरा सुपरफिशियल कॉन्टेक्ट है, तो ऐसा है इसमें. सो देयर इज नो एबिलिटी टू or there is no inability to realize the responsibility. Depression of mind, they stand on street and ogling the woman as they pass by, so great in his lust, जैसे सर ने मनोज सर ने अभी बोला. Then very elated and gay, sits silently, does not utter a single word, not answers when questioned. Generalities, they are warm blooded, aggravated by heat, warm applications, warm drinks, summer, ameliorated by cold, cold bathing and open air. मतलब ये है ना, देखो, aggravated by warm applications and warm drinks. तो अगर ये हम लोग है ना थोड़ा ग्लोबल मीनिंग लेते हैं ना, तो warmth उन लोग को पसंद नहीं है, the maybe the warmth of relationship भी उनको पसंद नहीं है. So they are happy with the cold bathing, मतलब you stay away from me, isolated ही उनको पसंद है. And they are ameliorated by open air, तो खुली हवा पसंद है, मतलब लिबर्टिनिज्म में है ये रूब्रिक, किसी की रोक टोक नहीं पसंद. Effect, it affects the bones, connective tissue, caries, exostosis, because it's a syphilitic remedy. Then complaints of old age or of premature old age. Premature old age क्योंकि precocious puberty है, precocious है children, तो sexual intercourse वगैरह भी जल्दी जल्दी हो जाता है. In syphilitic mercurial dyscrasia, young people, they look old. Increased ability to exercise without danger. This is very important. Like coca, is less affected by excessive heat of summer or cold of winter. Old cicatrices become red round edges and threatens to become open ulcers, like causticum and graphitis. अभी है ना, थोड़ा मैंने ये डॉक्टर शोल्टन की बुक में से भी लिया है और आर्चिबेल की नोट्स रडार में से भी ये लिया है, तो ये सब का थोड़ा सेम ही आ जाएगा, बट आई जस्ट रीड इट आउट. So they are very domineering. They tend to take over the interview. Insensitivity towards the partner. They don't care. In the repertory, indifferent to loved ones, indifferent towards his wife, towards the family. Using people. On the material plane, they can be generous. They can give money or belongings. But on the emotional plane, you will see that they are very little deep romantic or deeper feelings that occur. You have the feeling that he is using the people around him. Selflessly, and especially in sexual life. They think
They think materialistically and they are not concerned with anything other than that which is right in front of them. With this attitude, but will he feel inside? Isolation can be often a type of depression with a strong sense of isolation. If you don't give, finally you don't get back. You cannot get anything back. Thank you. Okay, sir. जी मैम, वेरी नाइस केस एंड वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। सभी को जिनके माइंड में ब्रेटरम था, आर्सेनिक था या कोई और दूसरी रेमेडी थी, अभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वंडरफुल केस मैम, डीप ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर IHF फैमिली। थैंक यू सर। बताइए किसी का कोई क्वेरी है? जी इन्होंने जो बनाया है सर, ना, आप बोलिए। इन्होंने जो ये जो इसकी जर्नी जो तैयार की है, ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी बनाई है, बहुत ही टू द पॉइंट बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्रोफेशनल कोई है, उनका काम है। बहुत बढ़िया जर्नी है। तो ये एक्चुअली तो कॉपी पेस्ट ही किया है फ्रॉम द सोर्स बुक्स। टेकन फ्रॉम डॉक्टर विट्रुल क्लासेस, डॉक्टर शोल्टन एंड आर्चिबेल रडार्स, और सर बहुत सारी बुक्स में से भी लिया है। पाठक रेपर्टरी, पाठक मटीरिया मेडिका, सब मटीरिया मेडिका का कंपाइलेशन है सॉर्ट ऑफ। यही बात है ना, ये आपको बहुत जगह से आपने मेहनत करके बनाया है। थैंक यू सर। सर आपसे ही सीखा है। ये कंपाइलेशन जो किया है वो तो पढ़ के हम लोग करते हैं, हम लोग भी कहीं अपने मन से तो निकालते नहीं है, लेकिन इसके लिए जो मेहनत की है आपने, वो देख रहा है आपने, बहुत बढ़िया मेहनत की है और बहुत सजा के पेश किया है, कहीं भी इधर उधर नहीं है। मैं सोचा कहीं कुछ कमी मिले तो मैं बोलूं, कोई जगह ऐसा नहीं मिला कि जहां, बल्कि इतना अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक्स टू प्रवीण सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे। दे कैन आस्क। हाँ, प्रवीण तो खैर बहुत हेल्प करते हैं, वो काफी उनको नॉलेज भी इनके बारे में बहुत अच्छा रहता है। सब रेमेडी की काफी डेप्थ है उनकी। वंडरफुल। दिलीपदा है। सर एक चीज पूछूं कि अगर माइंड मेथड के लिए तो आई एम न्यू पर्सन, अगर मैंने फिजिकल्स पर कभी किसी छोटे बच्चे को और वो सब दी है और एसिड फ्लो से उसको रिस्पांस मिला है, तो सर मतलब क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि आगे जाके दैट पर्सन माइट बी लैंड अप लाइक दिस? एक्चुअली मुझे बराबर से नहीं सुनाई दिया है मैम आपका क्वेश्चन। मैम मैं आई एम न्यू टू दिस माइंड सिस्टम, तो मैंने फिजिकल नॉट क्लियर मैम, यू आर वेरी स्लो। पता नहीं मुझे ही आवाज है कि किसी और को भी, सबको है ये प्रॉब्लम, पता नहीं। मैम आप ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो जी मैम, अभी ठीक था, अभी बोलिए आप। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि अगर आई एम न्यू टू द सिस्टम माइंड मेथड, तो मैंने फिजिकल्स पे अभी किसी को ये मेडिसिन दिया है एंड उसको उस प्रॉब्लम के लिए मैंने कुछ वॉट्स के लिए या हेयर फॉल के लिए दिया था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कैन वी थिंक ऑफ कि उस बच्चे का आगे जाके माइंड कैन बी लाइक दिस, और मतलब हम वैसे कर सकते, आगे जाके सोच सकते फ्लोरिक हैं? एसिड डेवलप होगा क्या? हाँ लेट जी। अस सी ना, यू स्टडी द पेशेंट आपके पास, मतलब अभी तो वो ठीक हो गया ना, सो अपना टेंशन तो गया, कांग्रेचुलेशंस, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? तो हाँ ठीक हो गया। अभी नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व हिम, आगे वो कैसे होता है। मैंने बोला ना, फ्लोरिक एसिड आपका ना इनिशियली हेल्दी फेज में क्या होगा, वो मटेरियलिस्टिक बनता रहेगा एंड देन प्रिकॉशियस है, तो यू जस्ट ऑब्जर्व हिम ओवर द इयर्स कैसा रहता है। इट्स अ गुड स्टडी, अपने को अच्छा रहेगा ये। यस मैम। और बताइए किसी का क्वेरी है कोई?
मैम क्योंकि वो मेरा बेटे का है तो आई एम बिट स्केर्ड कि वैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो ही इज जस्ट हाँ 22। एक मिनट में मैं जवाब दे देता हूँ आपका। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उन्होंने जब मेडिसिन पढ़ गई, दैट मेडिसिन इज एबल टू मैंने चेंज द माइंड ऑल्सो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत डीप लेवल पे काम करती है और सिग्नल जो है बॉडी बहुत पहले से भेजता है, एंड होम्योपैथ डॉक्टर उस सिग्नल को पकड़ के फ्यूचर की कंडीशन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो जब आपकी मेडिसिन पड़ गई तो उसमें जाने के चांसेस कम है। यदि फिर भी वो ऐसा लगा तो फिर आप जैसे बहुत सारे ऐसे ही केसेस थे जो फ्लोरिक एसिड देने के बाद उनकी वो चीजें भी गई और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगे, परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी उनके समझ में आई। तो उस लेवल पर जाके यदि माइंड चेंज कर सकता है तो इस लेवल पर तो यही इसका एंड हो गया। तो आप एकदम टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आप अब घर वालों को मिठाई खिलाइए कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर की ठीक कर दी, टेंशन फ्री हो जाए, वरना आप पैथोलॉजी में चले जाएंगे। ओके सर, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेलो वैसा नहीं है। हेलो मैम। Yeah, yes, yes, ma'am. हेलो। हाँ मैम। वो जो मैम बोल रही, मैं जो मैडम बेटे के बारे में टेंशन कर रही हूँ ना, उनके बारे में मैं कुछ पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको फील कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये मौसम ही कुछ ऐसा है। हेलो, आप सुन रहे हैं? मैंने हमारे पार्लर जा रही यस जो मैम, मैडम ने सवाल किया था वो सुन रहे हैं क्या? हूँ, पेटीकोट में नारा है और ब्लाउज तो हाँ इतना सुन रहे हैं। डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। हाँ नहीं, हाँ तो आप ना, जैसे आप बोले ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने दवाई दी है तो ठीक है, लेकिन आपका जो सोच है, आपका डर है ना, वो आपके बेटे में जाएगा, तो डेफिनेटली वो ऐसा बन जाएगा। इसलिए आपके मन का डर हटाना बहुत जरूरी है। आप डरिए मत और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि ऐसा नहीं होगा, अच्छा बनेगा। तो दवाई नहीं भी देंगे ना तो भी अच्छा बनेगा आपका बेटा, बस यही कहना है। थैंक राइट यू मैम, मैम। वाइब्रेशंस जो है वो मूव करती है। हाँ, वाइब्रेशन ही आपका जाएगा ना, वो उसको वो बिगाड़ बन- देगा। बिल्कुल निगेटिव वाइब्रेशन जाने ही ना दीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं yes. बहुत गुजर चुकी हूँ इन चीजों से, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको। सॉरी, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। नहीं मैम, इवन नहीं आई सही कैन है। अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने वैसे रेकी भी किया है एंड ऑल दैट, बट स्टिल आज ये केस चल रहा था तो मेरे के दिमाग में आया कि आई शुड आस्क। पता है, हम सब करते हैं, लेकिन ना अपने मन के डर को हटा नहीं पाते हैं। सबसे पहले डर को हटाने का हमको कोशिश करना है, बस वहीं से सब शुरू गड़बड़ हो जाती है। थैंक यू मैम। एक थोड़ा सा रूब्रिक वाइज मैं ऐड करता हूं मैम, क्योंकि आपके एनालिसिस में आपने अच्छे से बताया है, लेकिन रूब्रिक थोड़ा आ जाएंगे तो वो ध्यान में रहेगा सबके। तो जैसे आपने बताया, ये बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक इंसान रहता है। सॉरी 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 जी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक पर्सन रहता है विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, मतलब शराब शवाब जो हम बोलते हैं, और पैसा, है ना। और जो लग्जीरियस लाइफ है, लग्जीरियस चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर इसका फोकस रहता है। ठीक है। तो ये रूब्रिक जो कैपिटल लेटर्स में है यहाँ पर, ये रूब्रिक भी है साथ में। ठीक है। तो ही वांट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, डोंट लाइक एनी डिले, क्विक टू एक्ट। ठीक है। तो वो जो उसको ये ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए वो डिले नहीं करता है, क्विक टू एक्ट में है वो। ठीक है। तुरंत एक्ट करता है। टोटली एनग्रॉस्ड डे एंड नाइट, उसके लिए रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड सेक्सुअल डिजायर इन द फुलफिलमेंट। ठीक है। वो इसी में एब्जॉर्ब्ड रहता है कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को कैसे फुलफिल करे। इसके लिए हमारे पास और भी रूब्रिक है, एमोरस है, सेंसिस लेसिवियस है, ल्यूडनेस है, लव परवर्सिटी सेक्सुअल है, थॉट्स सेक्सुअल है, बुलिमिया है,
no deep feeling on emotional plane, no real contact. He is a very greedy person, and greed never lets you be satisfied. Greed, cupidity, eating and drinking in. He is so lascivious and lewd to the extent that lascivious looking at the woman or on the street. शराब और शबाब इसका वो आदी हो जाता है. एडिक्टेड टेंडेंसी टू बिकम, मतलब बहुत जल्दी एडिक्टेड होने की टेंडेंसी उसकी रहती है. अल्कोहलिज्म. टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर. ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए. वो किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है. अथॉरिटी रिफ्यूजल टू समवन. कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. डिक्टेटोरियल. He changes his partners like people changes old things. ठीक है, तो जैसे लोग पुरानी चीजें बदल देते हैं, वो इस तरह से पार्टनर्स को बदल देता है. Cars love far. He does not want to be bound by any bond and does not want to take responsibility. तो लिबर्टेनिज्म है, मैरिज अनइंडिविजुअल आइडिया ऑफ मैरिज, responsibility, inability to take responsibility, aversion to indifference to important things. In order to satisfy his needs for sharab and shabab, he remains fearless despite danger. मतलब जो इस तरह का बंदा रहेगा, जो एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व रहेगा, तो जैसा कि हमारे देश में जो सोसाइटी है, तो यहाँ पर मार पिटाई भी हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, या मतलब इसमें एक तरह का डेंजर रहता है. तो ये बंदा इस चीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि अब्जॉर्ब रहता है, तो साथ में फियरलेस भी रहता है एक तरह से वो. तो डिलूजन, डेंजर इंप्रेशन ऑफ फियर बट विदाउट. उसको डेंजर का इंप्रेशन है, बट फियर नहीं है. फियरलेस, डेंजर इन स्पाइट ऑफ. He does not like his family members at all. He becomes indifferent towards them, but at the same time he interacts very lively and warmly with strangers. जैसे मैम को भी फील हुआ इस केस में, ये 80 प्लस इनका एज है, फिर भी उनका टोन जो है, उनके जो जेस्चर्स हैं, मतलब बहुत लाइवली हैं वो. तो वो एनर्जी मैम को भी फील हुआ. तो जब भी आपके सामने फ्लोरिक कैंसर का पेशेंट होगा, तो ये एनर्जी आपको दिखेगा उसके अंदर. बहुत ज्यादा एनिमेटेड होता है ये बंदा. ठीक है, तो जब उसका मतलब एक पॉइंट के बाद जब उसकी फैमिली को, आईपीआर को एक्सपोज हो जाती है, उसकी रियल नेचर जो रहती है, इनर पर्सनैलिटी जो रहती है, तो उनकी तरफ से वैसा रिएक्शन आने लगता है. लेकिन इसको टोटली यही चीजें एंजॉय करनी होती हैं, तो वो थोड़ा इसको रोकने लगते हैं या ऐसा कुछ करने लगते हैं. तो ये उनके प्रति मतलब घृणा से भर जाता है, उनको अवर्जन में चला जाता है अपनी फैमिली को लेके. तो लेकिन जो स्ट्रेंजर है उनके साथ बहुत एनिमेटेड होके, बहुत फ्रेंडली होके बात करता है. When he feels that his family members are creating obstacles in fulfilling his sexual pleasures, he developed a strong dislike. Family aversion to insanity border zone. ठीक है, तो इस लेवल तक की उसको अवर्जन क्रिएट होती है. He started to treat them like servants. ठीक है, तो जैसा मैम ने बताया कि बहुत सुपरफिशियली उसका रहता है, वो कनेक्टेड नहीं होता है इमोशनली, कोई उसको अटैचमेंट नहीं होता है. Delusion servants he must get rid of and he wants to end his relationship with them. Delusions marriage dissolve marriage must. Delusions child drive children out of the house he must. Delusion betrothal must be broken. Due to being immersed in alcohol and pleasure day and night, he starts having ailments. तो यहाँ से उसको ailments भी आने लगती हैं, ailments from debauchery. ठीक है, तो when he is unable to fulfill his sexual pleasure due to family members illness or any other obstacle, ठीक है, तब भी उसको ailments आती हैं, ailments from celibacy. एक तो ये पिक्चर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है? एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, एम्बिशन, इंक्रीज्ड बुओयंसी, बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर, यहाँ पर एप्टीट्यूड वर्ड है. ठीक है, इंडस्ट्रियस, ऑप्टिमिस्टिक, ऑक्यूपेशन, डिजायर टू, सोशियबिलिटी, फ्लैटरिंग और वाइवेशियस. तो दूसरी तरफ क्या है
कि ये बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी भी रहता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, एप्टीट्यूड है इसके पास बिजनेस का, जैसे मैम ने बताया कि प्रेकोसिटी में भी है, ये इंटेलेक्चुअल में भी है। तो या आपको एक ऐसा शेड मिलेगा जो बंदा बहुत जम के अपना बिजनेस करता है, पैसा कमा रहा है, खूब सारी उसके पास लग्जीरियस चीजें हैं, लग्जीरियस लाइफ जी रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ऐसा भी मिलेगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन भी फ्लोरिक एसिड होता है। जी मैम, मेरे को बस इतना ही ऐड करना। Okay. Sir, I wanted to add one rubric from Pathak's repertory. Muscles increase ability to exercise without fatigue. वो कोका में भी है। यस मैम। सिमिलर रुब्रिक हम लोग ने स्टडी कर लिया है। हाँ सर, so that was remaining. Yes. So that's all from my side. Thank you Yes, sir. ma'am. प्रवीण सर, आपने बहुत हेल्प किया मुझे आज। जी जी, माय प्लेजर मैम। और ये जो आपने कोका का रूब्रिक बताया है, यहाँ पर एक और क्लोज रेमेडी आ जाती है, वो है ऑरिगेनम। ऑरिगेनम में भी इस तरह की कैपेबिलिटी रहती है, वो कंटिन्यूसली उसको मतलब मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज या सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यूसली, ऑरिगेनम में भी बहुत हाई लेवल का ये रहता है। उसमें भी फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा रहता है और सेक्सुअल अर्ज उसकी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहता है, लेकिन उसमें इससे भी कहीं ज्यादा मेनिया के लेवल तक रहता है कि एक ही दिन में मतलब कई कई बार करना, कई कई अलग अलग लोगों से करना। तो ऑर्गेनियम में उस लेवल का रहता है, एकदम बिल्कुल पागलपन की हद तक। सॉरी सर, एक बात रह गया बताना। डॉक्टर महेश चंद्रा सर के नोट्स में से ये मैंने पढ़ा है, फ्लोरिक एसिड में ना ऐसा है कि नेल्स ग्रो टू रैपिडली। तो उसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि नेल्स ग्रो होते हैं, तो व्हेन दे ग्रो एक्चुअली दे आर अवे फ्रॉम द नेल बेड, राइट? तभी वो बाहर आएंगे ना। सो एज लॉन्ग एज दे आर अटैच्ड टू द नेल बेड दे आर लाइव, बट वंस दे ग्रो आउट ऑफ द नेल बेड देन दे बिकम डेड। तो फ्लोरिक एसिड पर्सन में nails, they are growing too rapidly, but what is growing is the dead nails. So for the person it is dead nails, it is painless, but जो nails बढ़ते हैं that is for the poking the other people. तो जितने उसका खुद का वो painless है, लेकिन it becomes more painful to the other person. I hope I'm clear about it. So Yes, that ma'am. is nails grow too rapidly in फ्लोरिक एसिड. That's all. वेरी नाइस सर प्रणाम सर। बहुत अच्छे से बताया। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम। सर यही एक रेमेडी है जिसमें एसिड है, जिसमें थकान नहीं है सर, फैटिग नहीं है सर। जी जी जी। और बाकी सारी एसिड्स में जो है। जी सर। जी थैंक यू सर। जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर जागृति मैम। वंडरफुल सेशन मैम, बहुत ही प्यारा केस था, बहुत बढ़िया केस था, और बाकी आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है। तो आशा करते हैं कि अभी फ्लोरिक एसिड को लेके सबको अच्छे से क्लैरिटी आई होगी, आप अच्छे से इसको डीडी कर पाएंगे और अपने क्लिनिक में अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी हम सभी आशा करते हैं। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से जागृति मैम का बहुत बहुत आभार। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड, जी, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। जी जी सर, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत आभार सभी का, और जिन्होंने फ्लोरिक एसिड बोला है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। जी मैम। Sir, thank you very much. Thank you to IHF family. Thank you sir. प्रवीण सर स्पेशली, सर आपने ये सब प्रेजेंटेशन सब मुझसे प्रिपेयर करवाया है और आपने ही पीपीटी तो बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू मनोज सर, आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, और माय IHF फैमिली मेंबर्स फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सर। जी, आवर प्लेजर मैम।